Good morning students, myself Meenal Murhekar welcomes you all in the online tutorial of Shri Eknath Rao Kharse Talent School, Muktinagar. So in previous videos we have covered almost the chapter in which we have learned about what we have learned. We have first learned about the laws of chemical combination, in which we have learned about laws of constant proportion, and one more law we have learned, that is um, law of conservation of mass, right? So after that we have learned, we have covered Dalton atomic theory, then we have learned differences between atoms and molecules, then we have seen about how big the atoms are, about the structure of atom, then about 1 AMU unit atomic mass we have learned, then we have learned about molecules, ions, then we have covered till chemical formulas. In previous videos we have learned how to write chemical formulas for monoatomic, diatomic and tetraatomic and polyatomic ions too. So till here we have completed. Now it is the last portion of this chapter in which we are going to learn about the molecular masses, formula, unit mass and mole concept, the basic and you may say the most important part from this chapter, that is mole concept. So first before learning about the mole concept, first we are going to learn about the molecular mass and formula molecular mass. After that we will continue with mole concept. Okay, so first we'll see about molecular mass. What is a molecular mass? So what is a molecular mass? It is the sum of atomic masses of all the atoms in a molecule of a substance. It is what? It is the sum of atomic masses of all the atoms in a molecular mass of a substance. Means what? एक molecule है, उस molecules में जितने भी atoms present है, means suppose आप कीजिए आप H2O, this is a molecule. अब इसका मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? अब इसमें जो एटम्स प्रेजेंट है, डेफिनेशन क्या सजेस्ट कर रही है हमें कि इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स. Sum of atomic masses of all the atoms means sum of atomic mass of hydrogen plus atomic mass of oxygen will be the molecular mass of a substance. So अभी हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं. यहाँ पर H2O का हम देख लेते हैं. सबसे पहले molecular mass हम कैसे निकालेंगे? So first see the mass of hydrogen is what? Tomorrow we have discussed the table, right, in which the atomic mass are given. You just take out your textbook and on page number 35 you can see the table 3.2 in which atomic masses of few elements are given. So from there you can tell me the atomic mass of hydrogen. What is the atomic mass of hydrogen? The atomic mass of hydrogen is 1, but here 2 atoms of hydrogen are present, right? Here 2 atoms of hydrogen are present, that's why we multiply that 1, that is the atomic mass of hydrogen, with 2. So just see here, 2 into 1 plus, as it is about only hydrogen, now for oxygen we will apply plus. Now from this table again we can see the atomic mass of oxygen, and that is 16, right? So atomic mass of oxygen is how much? It is 16U. So but here only one atom of oxygen is present, that's why we will write here as 16. So now कितना होगा ये? 2 into 1 2 plus 16 equals to what? 18. So 18 is what? Here 18 is a molecular mass of H2O. Is it clear to all of you? Okay. So now ये हमने देखा कि molecular mass हम कैसे calculate करते हैं. Okay, do you want to see one more example from this? Okay, now here we will see one example of NaCl. Okay, NaCl molecule. See, Na, sodium Cl chloride, right? Now here one atom of Na,
Here one molecule NaCl is present, in which it is made up of Na and Cl. One atom of sodium is present and one atom of chlorine is present. So the weight of Na is how much? Atomic mass of sodium is how much? The atomic mass of sodium is 23U, right? And that of chlorine is 35.5, right? So now the total is what? This is 58.5. 58.5 is what? 58.5 is the molecular mass of NaCl molecule. So now here, as we measure everything in its unit, so here also we need a unit, that in which unit that molecular mass will be measured. So for measuring molecular mass, the unit, that is atomic mass unit, that we have learned earlier is in that unit only molecular masses are measured. But in this in here, from here, as IUPAC, in IUPAC nomenclature, they have not suggested that the masses are measured in AMU. From international standards, now the masses are measured in U only. So here the unit to measure the molecular mass of any substance is what? That is U. And U is what? We have learned this earlier. U means unified mass. Okay. So in this way molecular masses are calculated. One more time we will see the definition. What is it? It is the sum of atomic masses of all the atoms in a molecule of a substance, right? And the unit is U. Okay, unified mass. Now we are going to learn about a formula unit mass. What is the formula unit mass? Formula unit mass is same as the molecular mass, but see difference between this. Formula unit mass, it is a sum of atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound. हमने देखा मॉलिक्यूलर मास में हमने मॉलिक्यूल का जो है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स प्रेजेंट है उनका हमने मास का एडिशन किया और उससे हमने मॉलिक्यूलर मास बोला. तो फॉर्मूला यूनिट मास में क्या होगा? फॉर्मूला यूनिट मास भी उसी का है. मीन्स एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का कोई मीन्स मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, उस कंपाउंड का हमने एक फॉर्मूला लिख दिया है, केमिकल फॉर्मूला, और उस केमिकल फॉर्मूले में जितने एटम्स आ रहे हैं उसका जो हम मास निकालेंगे दैट इज नोन एज फॉर्मूला यूनिट मास. So it is as similar as that of the molecular mass, right? So what it is the sum of atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound. It is calculated same as we calculate the molecular mass, right? Only difference, we use the word formula unit mass for those substances whose constituent particles are ions. हम फॉर्मूला यूनिट मास वर्ड तभी यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पर जो कंपाउंड है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे जिससे वो कंपाउंड बना है, दैट आर इन द फॉर्म ऑफ आयंस. अगर आयंस कंबाइन होके एक कंपाउंड बने हैं तो उसका जब हम मास कैलकुलेट करेंगे तो वो किन टर्म्स में करेंगे? फॉर्मूला यूनिट मास के टर्म्स में करेंगे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस. ओके. Now shall we see one more example here to calculate the formula unit mass? Okay, we'll see here. Let's see the example 3.2. Here a question is there, example is there. Calculate the formula unit mass of CaCl2. Now here we have to calculate the formula unit mass of CaCl2. Here Ca and Cl are forms are present in the forms of ions. That's why we here are calculating the formula unit mass. So let's see here, one atom of, or you may say one ion of calcium is present, right? And so here we will write the atomic mass of calcium first. Atomic mass of calcium is what? It is 40 plus
Now here 2 atoms of chlorine are present, so we'll write 2 here and in 2 here, and it will be multiplied with the atomic mass of chlorine, and the atomic mass of chlorine is how much? 35.5. Right. So triple one U, 111 U will be the formula unit mass of calcium chloride. Okay, is it clear to all of you? Now here some questions, 2 questions are given in which you have to calculate the molecular masses and formula unit masses. So this is a homework for today. You need to calculate the molecular mass and formula unit masses of these compounds. Okay. Now apart from this, now we are coming on the major topic, that is mole concept, right? Now we are going to learn about the mole concept. So first we'll see that why there is a need of this word mole now. What is this mole now, right? So first we'll see this. See, we just open your textbook. We are going to learn, we are going to read first from the textbook. Now we are going to understand this. So mole concept, 3 point section, page number 40, section 3.5.3, mole concept. Take an example of the reaction of hydrogen and oxygen to form water. Now here one example is given, that is 2H2 plus O2 is equal to 2H2O, right? In this, the above reaction indicates that, now this reaction is indicating what? 2 molecules of hydrogen combines with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water, right? देखिए यहाँ पर 2 molecules of hydrogen are combining with hydrogen combines with 1 molecule of oxygen, right? 2 molecules of hydrogen combines with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water. Yes, 2 molecules of hydrogen are combining with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water, right? So in second way, you may say that 4U of hydrogen, 4U of hydrogen, why they have concluded here 4U. So here we will write the atomic mass as first. See, mass of hydrogen is 1. So here already H2 is, it is formed in diatomic form. So 2 molecules of H2. H2 is what? 2 multiplied by 1 into 2 equals to what? 2 ones are 2 and again 2 into 2, that will be 4. So the atomic mass of 2H2 here will be what? 4U. Now for O2 we will calculate the same. O2 is the mass of oxygen is 16, right? So now for one atom of O2 the mass is 16. So here 2 are present, so 2 into 16, right? So it will be what? 32U. Okay, and here 2H2O we have to calculate. So here what we will do, we will here just simply add this, that is 34U plus 32U, that will be equal to what? 36U.
So here we have calculated the atomic masses of H2, that is 4U for H2, 32U for oxygen, and for the water molecule the whole molecular mass will be what? 36U. So from this we have concluded one more statement here, that we can say here that the 4U of hydrogen, here 4U of hydrogen molecule combines with 32U of oxygen. Yes, we can conclude this too. Here 4U of oxygen is combining with 32U of oxygen to form 36U of water. Yes, बोल सकते हैं ना हम ऐसा, इसके रिस्पेक्ट में हम ऐसा बोल सकते हैं जब हमने यहाँ कहा कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आर कंबाइनिंग विथ वन मॉलिक्यूल, सॉरी, two atoms of hydrogen are combining with one atom of oxygen to form two molecules of water, right? So from here we can conclude that in terms of mass we can say that 4U of hydrogen are combining with 32U of oxygen to form 36U of water. ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे, but ये क्या होगा? We can infer from the above equation that the quantity of a substance can be characterized by its mass or the number of molecules. Yes, हम इससे बोल सकते हैं, यहाँ से हम conclude कर सकते हैं, infer कर सकते हैं कि ये जो है क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस है वो कैरेक्टराइज्ड होती है इसके मास से. मास से भी हम बता सकते हैं क्वांटिटी, और उस मास से तो हम बता ही सकते हैं, और एटम्स या एटम्स और मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं उस रिएक्शन में, उससे भी हम उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं. बट अ केमिकल reaction equation indicates directly the number of atoms or molecules taking part in the reaction. But जब हम कोई केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो वो डायरेक्टली हमें, जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो वो डायरेक्टली हमें बता देता है कि कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम्स उस रिएक्शन में प्रेजेंट है. सो वो हमें डायरेक्टली बता रहा है, हमें मास की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, राइट? So therefore it is more convenient to refer to the quantity of a substance in terms of the number of its molecules or atom rather than their masses. तो ये हमारे लिए ज़्यादा easy है कि हम जो number of atoms और molecules है, मीन्स जो quantity है किसी substance की, वो हम number of atoms और molecules के form में उसको measure करें as compared to that of the मास ऑफ द एटम, क्योंकि ये बहुत लेंदी प्रोसीजर जाता है, फिर उसका मास निकालो. इससे तो बेटर है जब केमिकल रिएक्शन में हमें इक्वेशन में हमें डायरेक्टली दिख रहा है कितने एटम्स और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वो ईजियर वे है ना हमारे लिए. सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस मेथड, राइट? सो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सो अ न्यू यूनिट मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड. सो इसलिए यहाँ पर एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस हुई जिसे हमने क्या नाम दिया? मोल नाम दिया. अब हम देखने वाले हैं कि 1 मोल मीन्स हाउ मच. तो लेट्स सी हियर. सो अ न्यू यूनिट मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड. 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, दैट इज स्पीशीज मीन्स व्हाट? कोई भी जाति, मतलब उसमें कुछ भी आ सकता है. उसमें आप यू में से एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल, आयन, वॉट एवर इट इज, उसमें हमें देखना है 1 मोल. अब 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज दैट इज एटम, molecule, ion or particle is that quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass. Means अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि 1 mole is equal to, क्या बोल रहे हैं ये? 1 mole of any species that is atom, molecule or ion is the quantity number having mass equal to its atomic or molecular mass in grams. So 1 mole equals to how much यहाँ पर? Mass of any substance equal to its atomic or molecular mass.
मीन्स अब हम ये क्या बोल रहा है, 1 मोल इक्वल्स टू व्हाट, मास ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें मतलब कोई उस एटम का कितना मोल वहाँ पर प्रेजेंट है वो अगर हमें बताना है तो हम कैसे बताएंगे, उसमें उसका उस एटम का कितना एटॉमिक मास मीन्स एटम का जो मास है वो कितना प्रेजेंट है या मॉलिक्यूलर मास कितना है, उसके कंपैरिजन में हम बता सकते हैं कि 1 मोल कितना है। ठीक है, नाउ हम आगे देखते हैं। अभी मैं जानती हूँ आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई होगी, इसलिए हम अब आगे पढ़ते हैं। सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स that are atoms, molecules or ions present in 1 mole of any substance is fixed। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं 1 मोल में, वो क्या कितने हैं, वो फिक्स्ड हैं। 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्होंने फिक्स कर दिए, और वो फिक्स कितने कर दिए उन्होंने, यहाँ पर देखिए 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोले उन्होंने, 1 मोल में किसी भी एटम के कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे किसी भी एटम के, 6.022 इंटू 10⁻23। अब आप जानते हैं 10⁻23 मतलब कितना बड़ा अमाउंट होता है। मीन्स इसको अगर हम लिखने जाएंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 6022 और फिर आगे कितना जीरो सी, इतना। सो इतने पार्टिकल्स होंगे 1 मोल में, तो ये कितनी बड़ी क्वांटिटी है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमने बोला कि 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 जो है पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं 1 मोल में। और ये जो यूनिट है, ये यूनिट को हमने क्या बोला, एवोगैड्रो नंबर। इसे हमने क्या बोला, एवोगैड्रो नंबर। और ये जो नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, n नॉट से, n और ये छोटा सा जीरो यहाँ पर नॉट। क्यों हमने इसे एवोगैड्रो नंबर बोला, क्योंकि ये जो नंबर है हमें एक साइंटिस्ट ने दिया जिनका नाम था अमेडियो एवोगैड्रो, राइट। सो इन्होंने क्या बोला कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स होंगे। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। सो जैसे हम बोलते हैं कि 1 डजन में कितने बनानास होते हैं, 1 डजन में 12 बनानास होते हैं, राइट। सो इन दिस सिमिलर वे हमने यहाँ पर बोला कि 1 मोल में कितने एटम्स के पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 atom particles, right? So now see here, beside being related to the number, 1 mole has one more advantage over a dozen or a gross. This advantage is mass of 1 mole of a particular substance is also fixed. अब हमने मास भी हमने फिक्स कर दिया। जैसे यहाँ पे हमने देखा था 1 मोल की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का इक्वल है उसके मॉलिक्यूलर मास से या एटॉमिक मास से। सो एटॉमिक देखा था ना हमने कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया था, सपोज फॉर H2 अगर हम देखें वाटर के मॉलिक्यूलर वेट के बारे में देखें तो हमने अभी प्रीवियसली किया था कैलकुलेट, दैट इज व्हाट, दैट इज 18U देखा था। या हम सिंपली हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में कितने देखे थे हमने, 1U देखे थे। ऑक्सीजन के लिए कितना देखा था हमने, 16U देखा था एटॉमिक मास, यस। सो इन दिस वे हमने ये क्या बोला यहाँ से कि जो 1 मोल ऑफ एटम है उसमें किसी भी सब्सटेंस का जो मास है वो इक्वल है 1 मोल के। सो यहाँ पर हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के 1 मोल में कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 मोल मतलब इस डेफिनेशन की टर्म्स में अगर हम कहें तो हाइड्रोजन का 1 मोल मतलब कितना, 1U मास,
1 u mass of hydrogen is equal to 1 mole of hydrogen. ओके, O2 ऑक्सीजन की बात करें इधर तो ऑक्सीजन में क्या बोलेंगे हम, 16 u mass of oxygen is equal to 1 mole of oxygen. समझ आ रही है आपको बात? ओके, सो वाटर का अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 18 u grams of water is equal to 1 mole of water, राइट. सो अब यहाँ पर हमने उसी को पार्टिकल्स के फॉर्म में, जब यहाँ पर हमने उसको मास के फॉर्म में कंपेयर किया था और यहाँ पर हम उसको पार्टिकल्स के फॉर्म में कंपेयर कर रहे हैं, हमने उसे बोल दिया कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स. ओके, सो अब देखें यहाँ पे the mass of 1 mole of a substance is equal to its relative atomic mass or molecular mass in grams. राइट, अब हमने यहाँ पर देखा कि उसको हमने एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में उसको कैलकुलेट हम किया, यूनिफाइड मास के फॉर्म में हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था. बट द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, atomic mass of an element gives us mass of one atom of that element in atomic mass unit. यहाँ पर हमने देखा कि ये जो कि एटॉमिक मास यूनिट है वो हमको क्या देता है, किसी भी एटम का मास देता है और उसे हम किस यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, राइट. सो अब आगे देखते हैं, टू गेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट. ठीक है, अगर हमें अब अब मास निकालना है हमें 1 मोल ऑफ एटम्स का. अब 1 मोल ऑफ एटम्स का अगर हमें मास निकालना है, हमें ये पता है कि 1 मोल ऑफ मास, 1 मोल मीन्स 1 मोल में इतना ही मास आ पाएगा किसी भी एलिमेंट का. बट अगर हमें मोल, उस एक 1 मोल का मास निकालना है तो उसको हम किस टर्म्स में कंपेयर करते हैं, किस टर्म्स में निकालते हैं, मोल्स का मास निकालते हैं हम मोलर मास की टर्म्स में, राइट. यहाँ पर हमने पूरा मॉलिक्यूल्स का मास निकाला था, एटम्स का मास निकाला था. एटम के मास को हमने क्या बोला था, एटॉमिक मास बोला था, और मॉलिक्यूल के मास को हमने क्या बोला था, मॉलिक्यूलर मास बोला था ना. और इसको हमने मेजर किस में किया था, एटॉमिक मास यूनिट में किया था, जिसकी यूनिट थी यू, यूनिफाइड मास. पर यहाँ हमको अब निकालना है 1 मोल एटम्स का मास. 1 मोल एटम्स का मास निकालना है तो 1 मोल ऑफ the mass of 1 mole of any substance will be what, this is same as this. क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि 1 मोल को हमने किसी सब्सटेंस का एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को हमने बताया है. पर सिर्फ अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ यूनिट चेंज हो जाएगी, नाम चेंज हो जाएगा. अब हमको निकालना है 1 मोल का एटॉमिक, 1 मोल का टोटल मास निकालना है हमें. To get the mass of 1 mole of atoms of that element, that is molar mass. तो जो 1 mole of atom का जो मास है उसे क्या बोलेंगे, mass of 1 mass of 1 mole of anything equals to what, molar mass. So इसको हमने 1 मोल के मास को हमने क्या बोला, यहाँ पर मोलर मास बोला. मोलर मास भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो ऐसे ही हम निकालेंगे, क्योंकि मोलर मास मीन्स व्हाट, 1 मोल मतलब क्या, यही मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, राइट. सो बस यहाँ पर क्या डिफरेंस होगा कि यहाँ पर हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास AMU के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, बट मोलर मास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम ग्राम्स की टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे. ओके, ग्राम्स की टर्म्स में इसको हम कैलकुलेट करेंगे. सो here, to get the mass of 1 mole of atom of that element, that is molar mass, we have to take the same numerical value, but means numerical value तो same है, see, same numerical value we will take, but what here, it is written here that
1 mole of atom of that element, that is molar mass, we have to take the same numerical value but change the unit from U to G. Okay, so molar mass of atom is also known as gram atomic mass. मोलर मास को हम क्या कह सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास. क्यों कह सकते हैं यहाँ पर मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास? क्योंकि मोलर मास जो है ग्राम्स में, हम ग्राम की यूनिट में कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास. क्योंकि ये है तो पूरा वही एटम्स का ही मास है. ठीक है, तो बस 1 मोल का है इसलिए हमने उसे मोलर मास बोला, और ग्राम्स की टर्म्स में कंपेयर हो रहा है इसलिए हमने उसे क्या बोला? ग्राम एटॉमिक मास बोला. नाउ सी, फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1U. See here, atomic mass of hydrogen is what? 1U. So gram atomic mass of hydrogen will be 1G. ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा हाइड्रोजन का? 1G. बस यूनिट चेंज कर दी हमने. नाउ सी अनदर एग्जाम्पल. अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं हाइड्रोजन का? देखें, 1U ऑफ हाइड्रोजन हैज ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन. मतलब क्या होगा? 1U ऑफ हाइड्रोजन में सिर्फ 1 एटम था हाइड्रोजन का. ये तो हम जानते हैं ना कि 1U ऑफ हाइड्रोजन में कितना एटम था? एक ही हाइड्रोजन एटम था. सो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज 1 मोल ऑफ एटम्स. जैसे हमने यहाँ बोला था कि 1U ऑफ हाइड्रोजन में सिर्फ एक एटम है हाइड्रोजन का, और यहाँ पे हमने इसको मोल की डेफिनेशन में इंक्लूड किया है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने मोल है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है. आपको समझ आ रही है बात? क्या हम बोलेंगे? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है. मीन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम हाइड्रोजन. सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन की टर्म्स में बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे 16U ऑक्सीजन हैज ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. 16U जो है एटॉमिक मास, वो किसका है? ये सिर्फ एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का वेट है, राइट? ये तो अब हमने देख लिया कि 16U इज द मास ऑफ 1 एटम. सो 16 ग्राम ऑक्सीजन हैज 1 मोल एटम्स. तो कंपैरेटिवली अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि 16 ग्राम जो है, 16 ग्राम ऑक्सीजन मतलब कितना? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. बोलेंगे नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पर यही सब चीजें बोली हैं, राइट? So mass of 1 mole of anything is equal to the molar mass, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं ग्राम्स की टर्म्स में, इसलिए हम उसे ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 1 मोल क्या है समझ आया? अब 1 मोल को हमने मोलर मास की टर्म्स में लिखा, तो दैट विल बी इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास. और अगर उसको पार्टिकल्स के फॉर्म में देखें तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. सो अब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन. और इसी को इक्वल हम बता सकते हैं कितना? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 16 ग्राम ऑक्सीजन. सो यहाँ पर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 6.022 into 10 to the power 23 equals to how much? 16 ग्राम ऑक्सीजन, राइट? कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितना है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 16 ग्राम. और 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. तो हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल्स टू 16 ग्राम ऑफ O2. बट यहाँ पर ये कंडीशन है कि ये सिर्फ ऑक्सीजन के केस में है. हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर ये वैल्यू बदलेगी. जैसे
अब हम अगर बात करें हाइड्रोजन की, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात करें सपोज, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में। पर हमने हाइड्रोजन का जो मोलर मास देखा, मोलर मास कितना था, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू हाउ मच, इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। मीन्स हाइड्रोजन के लिए 1 मोल में कितने ग्राम कितना मोलर मास होगा, 1 ग्राम होगा, और वो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 6.022 इंटू 10⁻23। तो हर एलिमेंट के साथ ये वैल्यू जो है वो चेंज होगी, उसका जो मोलर मास है वो चेंज होगा, क्योंकि हर एलिमेंट का मोलर मास डिफरेंट है, राइट। इज इट क्लियर नाउ? सो अब आगे देखते हैं, टू फाइंड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल वी कीप द न्यूमेरिकल वैल्यू द सेम एज द मॉलिक्यूलर मास बट सिंपली चेंज यूनिट एज अबाउ फ्रॉम U to G. For example, we have already calculated the molecular mass of water, that is 18U. From here we understand that 18U water has only 1 molecule of water and 18 gram water has 1 mole of molecules of water, that is 6.023 into 10⁻23 molecules of water. ये चीज हमने यहाँ तक देख ली है, right? Now chemists need the number of atoms and molecules while carrying out the reaction. अब chemist को numbers की ज़रूरत थी कि कितने atoms और molecules हमें ज़रूरत है reaction में. So for this they need to relate the mass in grams to the number and it is done. That 1 मोल को उन्होंने क्या बोला, 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर, और वही इक्वल था किसके, रिलेटिव मास इन ग्राम्स। ये हमने यहाँ पर कंक्लूड कर दिया, 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू व्हाट, रिलेटिव मास, और यू में से मोलर मास, राइट, रिलेटिव मास इन ग्राम्स। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, रिलेटिव मास इन ग्राम्स। ऑक्सीजन के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल्स टू व्हाट, रिलेटिव मास ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिलेटिव मास ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, 16 ग्राम. फॉर हाइड्रोजन हियर रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, 1 gram. Or if in case of H2O, if we talk about H2O, so for H2O the relative mass is 18U. So 18U of H2O is equal to what, 6.022 into 10⁻23 number of particles, right? Now thus a mole is a chemist counting unit. अब mole क्या है, chemist लोगों की counting unit बन गई. The word mole was introduced around 1896 by William Oswald, who derived the term from the Latin word moles meaning a heap or a pile. Heap आप जानते हैं, coins की heap और pile लगाते हैं आप. heap मतलब बड़ा सा ढेर, और पाइल मतलब कॉइन्स का पाइल लगाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जब कॉइन्स रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पाइल. तो ऐसे ही मोल को उन्होंने टर्म किया, मोल वर्ड यहाँ से लिया उन्होंने. A substance may be considered as a heap of atoms or molecule. The unit mole was accepted in 1967 to provide a simple way of reporting a large number. The massive heap of atoms and molecules is a sample. Okay. So in this way we have completed the mole concept. Now here few examples are given, few numericals are given in your textbook that we are going to solve now. इससे आपको और ज़्यादा clear हो जाएगा in the ways of formula कि कैसे 1 mole को हम define कर सकते हैं. Okay, so we'll see the examples now. Now here we are going to see the example. See, first example given is here. What is it? Calculate the number of moles of following. हमें number of moles को calculate करना है. First part is 52 gram of helium. 52 gram of helium हमें दिया है. इसमें कितने numbers of moles present है, हमें ये निकालना है.
आप भी अपनी नोटबुक लेकर इसे सॉल्व कीजिए मेरे साथ साथ, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नंबर जो गिवन है ना, हमें सबसे पहले वो लिखते हैं। आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा जो जो चीज़ें हमें नोन है पहले हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स किस चीज़ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। वहीं फिर आता है गिवन मास, गिवन मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से। और यहाँ पर गिवन मास हमें कितना है, हीलियम का गिवन मास कितना है 52 ग्राम। ओके, नाउ फिर उसके बाद आता है मोलर मास। मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से। फिर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कैपिटल N से, राइट। और थर्ड और लास्ट हमारे पास क्या है, एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, एवोगेड्रो नंबर, एवोगेड्रो नंबर को हमने देखा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N0 से। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे। यहाँ पर हमें अब कैलकुलेट करना है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो सबसे पहले एटॉमिक मास हम निकालेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना होता है उस टेबल में आप देखेंगे तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम होता है 4U, इक्वल्स टू 4U, राइट। फिर हम देखेंगे मोलर मास ऑफ हीलियम। मोलर मास अब कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम अगर 4U है तो मोलर मास कितना हो जाएगा 4 ग्राम, राइट। यही डिफरेंस है ना एटॉमिक मास में और मोलर मास में। ठीक है, नाउ अब हमें क्या निकालना है, इसमें क्या दिया है 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम के हमको दिए हैं और उसमें हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं फ्रॉम मास। मास हमको गिवन है और इससे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो हमने क्या रिलेशन देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, स्मॉल n, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। राइट, तो गिवन मास हमारे पास कितना है, गिवन मास जिसका हमको निकालना है कि कितने मोल्स हैं उसमें, उतने मास में, दैट इज 52। और मोलर मास, मोलर मास कितना है हमारे पास 4 ग्राम्स, राइट। सो इसको हमने ये ऐसे लिखा, हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया हमने। इसको हम इस फॉर्म में देख लेते हैं पहले कि नंबर ऑफ मोल्स को हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल n से, गिवन मास को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, गिवन मास को हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया और मोलर मास को हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया, राइट। सो यहाँ पर गिवन मास कितना था हमारे पास 52 ग्राम और हमारा मोलर मास जो था वो कितना था 4 ग्राम, राइट। सो इससे हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ हीलियम कंटेन्स हाउ मच, 52 ग्राम ऑफ हीलियम contain how much moles, it will contain 4 1s are 4 here, 4 3s are 12, right. So here 13 moles are present in 52 gram of helium. कितना होगा, from here we can conclude that 13 moles
of helium are present in 52 ग्राम हीलियम. 52 ग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे? 13 मोल्स ऑफ हीलियम प्रेजेंट होंगे. इज इट क्लियर? नाउ इसी का हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. ये तो क्लियर हो गया ना, ये सारी चीजें तो आपको गिवन है कि किस चीज को किससे रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, आई एम गोइंग टू रब दिस. नाउ सेकेंड पार्ट देखें इसी का. सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है इन्होंने? 1.044 सॉरी 12.044 into 10 to the power 23 numbers of helium atoms. अब दिया है 12.044 into 10 to the power 23 numbers of helium atoms, और इसमें हमको क्या निकालना है? फाइंडिंग मोल फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. यहाँ पर अब नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे हमने मास के फॉर्म में नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, और यहाँ पर आप किसके टर्म्स में निकालने हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में. तो यहाँ पर इतने हमको पार्टिकल्स दिए हुए हैं. सो अब हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 particles. Right, this thing we know that. So the number of moles, अब number of moles निकालने हैं. number of moles को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? small n से. Now the number of moles are equals to given number of particles divided by Avogadro number. ओके, और इसी को हम देखें तो हमने क्या लिखा था? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमने कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया था, वहीं एवोगैड्रो नंबर को एन नॉट से. राइट, सो अब यहाँ पर हम देखें गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं हमारे पास? 12.044 into 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. कितना है एवोगैड्रो नंबर? 6.022 into 10 to the power 23. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस ये चला गया 6.022 मीन्स 6 to the 12 डायरेक्ट दिख रहा है कि इट इज जस्ट द डबल ऑफ दिस. सो this will be 2. So this will be what? 2 moles. From here we can conclude that in 12.044 into 10 to the power 23 numbers of helium atoms contain how much? 2 moles of helium. So 2 moles of helium are equal to how much? 12.044 into 10 to the power 23 numbers of helium atoms. ठीक है, 2 moles. Is it clear to all of you? Yes. Now we'll see another example. अनदर एग्जाम्पल में क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग. अब हमें क्या निकालना है? मास निकालना है फॉलोइंग का. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या है? 0.5 मोल ऑफ N2.
ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, मास निकालना है हमें। और यहाँ पर दिया है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस और मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल। अब निकालना है हमें, मास निकालना है मोल ऑफ मॉलिक्यूल से। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि N इक्वल्स टू गिवन मास, गिवन मास स्मॉल m डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि गिवन मास is equals to what? Molar mass multiplied by number of moles. This will be multiplied here. अगर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमें मिल जाएगा, मिलेगा। सो यहाँ पर हम देखेंगे अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, मास निकालना है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर मोलर मास N2 का मोलर मास कितना होता है, 28 होता है। देखिए आप उस टेबल में N2 का मोलर मास कितना होता है, 28 होता है। और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमको कितने दिए हैं, 0.5। सो 0.5 नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलर मास इज 28। सो द मास ऑफ N2 विल बी व्हाट, द मास ऑफ N2 विल बी 14 ग्राम। What it is, it will be 14 gram. Is it clear? Now we'll see another part of this question. What it is asked here, 0.5 mole of N atoms. .5 moles of N atoms. So here what we have to calculate, mass from moles of atom. ठीक है, वहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया था, मोल फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट किया था। और यहाँ हमें मास निकालना है फ्रॉम मोल ऑफ एटम, एटम का दिया हुआ है यहाँ पर, अब वहाँ पर मॉलिक्यूल का था। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखें, यही सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जो हमने वहाँ पर यूज़ किया था। N इक्वल्स, मास निकालना है वापस, तो M इक्वल्स टू मोलर मास इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो अब मोलर मास कितना था हमारा, मोलर मास कितना है नाइट्रोजन का। अब वहां पर दो, ये डायएटॉमिक था इसलिए यहाँ पर मोलर मास जो था वो कितना था, 28 था। बट यहाँ पर N एटम दिया है, नाइट्रोजन एटम दिया है, तो दैट इज प्रेजेंट इन सिंगली मोनो एटमिक फॉर्म। तो मोनो एटमिक नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होगा, एटमिक मास कितना होगा, 14 इंटू नंबर ऑफ मोल्स हमें कितना दिया है, 0.5 मोल्स। ओके, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7, राइट। कितना हो जाएगा, 7 ग्राम, क्योंकि हमें मास निकालना है तो ये कितना हो जाएगा ग्राम की टर्म्स में, 7 ग्राम। तो 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स में कितना, इनका कितना मास होगा, 7 ग्राम मास होगा। नाउ सी द थर्ड पार्ट में क्या बोला है उन्होंने, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23, 10 to the power 23 number of N atoms. क्या दिया है यहाँ पर, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर्स ऑफ N एटम्स। और इसमें हमको निकालना है मास फ्रॉम नंबर। अब इसमें भी हमको मास ही कैलकुलेट करना है, पर यहाँ पर हमको क्या दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो हम अब मास को नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पहले मोल्स के फॉर्म में देखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या होता है इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स
डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो नंबर, राइट। सो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हमारे पास 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है कि 3.011 इज द हाफ ऑफ 6.022। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन कंक्लूड 1.2, ये तो ये ऐसे कैंसिल आउट हो गया 1/2, और यू में से हाउ मच, अच्छा यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स को इन्होंने यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं किया है, पर बट ठीक है हमने सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ पर 1/2 दैट इज 0.5 नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास यहाँ पर कितने आ गए 0.5 आ गए। अब हमें क्या निकालना है, उसका मास निकालना है। तो अब मास क्या होता है, वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी, मास इज इक्वल्स टू व्हाट, मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स, राइट। सो यहाँ पर अब देखें हम, तो मोलर मास कितना था नाइट्रोजन एटम का, प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा, यहीं पे देखिए मोलर मास जो है नाइट्रोजन एटम का दैट इज 14, राइट। और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर हमने कैलकुलेट किए, कितने आए नंबर ऑफ मोल्स 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 ग्राम, ओके। 14 को जब हाफ मतलब 0.2 से हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 ग्राम्स आएगा। तो कितना नंबर ऑफ मीन्स इतने 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स में कितने मोल नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ओके। मतलब मोल में तो 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, पर उसका मास कितना प्रेजेंट है 7 ग्राम प्रेजेंट है, ओके। नाउ अगेन द फोर्थ पार्ट इज also dependent on the number of particles only. D part, D part देखें, D part में क्या बोला है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल, number of N2 molecules, इसका हमको निकालना है, मास निकालना है अब, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि N इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ओके। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सो ये कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा ये कितना आ रहा है डायरेक्ट 1 आ जाएगा, 1 मोल, ठीक है। नाउ अब हमको मास निकालना है, यहाँ से तो हमने नंबर ऑफ मोल निकाल लिया। अब उस फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे गिवन मास अगर हमको निकालना है तो मास इज इक्वल्स टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलर मास कितना है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का है, अब डायटोमिक है, तो इसका यहाँ पर कितना हो जाएगा, मास डबल हो जाएगा 28 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा 28 ग्राम्स, राइट। कितना हो गया 28 ग्राम्स। सो इजी है ना ये सब, ओके। सो इसी वे में आपको ये सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। अब ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसको मैं आपको ऐसे ओरली बता देती हूँ। देखिए
क्या दिया है यहाँ पर, आप आपका बुक खोलिए और एग्जाम्पल 3.5 देखिए क्या दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं कि सॉल्व भी करना है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल। यहाँ पर निकालना है हमको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं और फर्स्ट क्या है उसका, 46 ग्राम ऑफ एन एटम्स। अब हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमको मास दिया हुआ है सोडियम एटम्स का। ठीक है, गिवन मास है हमारे पास कितना, गिवन मास इज इक्वल टू, पहले हम देख लेते हैं गिवन क्या है, गिवन मास इज इक्वल टू 46 ग्राम और हमें यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, करने होंगे ना। तो बट यहाँ पर अब हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला उन्होंने दे दिया है, एक फार्मूला आप और भी देख सकते हैं कि जब हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने होते हैं, तो उसके लिए एक और फार्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। इससे इजी हो जाएगा डबल डबल करने से, तो डबल डबल करने से एक फॉर्मूले में ही हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएंगे ना। तो पहले जैसे हमने किया वैसे अगर करें तो हम क्या करेंगे, पहले ये मोलर मास मीन्स गिवन मास है हमारे पास इतना, फिर मोलर मास निकाल के हम उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स में हम वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो वाले नंबर में उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे। पर अब हम डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो देखें गिवन मास कितना है 46 ग्राम और मोलर मास कितना है, सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23 होता है। ठीक है, यहाँ ग्राम यूनिट नहीं लिखेंगे हम। ठीक, तो अब ये कितना हो गया, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर लिख देंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अब इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो क्या होगा, 23 वन ज़ा 23, 23 टू ज़ा 46, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23. Okay, so that will be equals to what, 6.022 will be multiplied to 2, so that will be 12.044 into 10 to the power 23 number of particles. So इतना 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, 12.044 इंटू 10 टू द पावर -44. ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पार्ट 3 में देख लीजिए, पार्ट 3 थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है हमें। पार्ट 3 में क्या है, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स अब हमें दिए हैं। .1 मोल ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें वापस वही निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमको क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, अब इस फॉर्मूले में देखें तो हमको मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास हमारे पास कार्बन एटम का है, एवोगैड्रो नंबर भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसके लिए भी एक और न्यू फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये न्यू फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन है, कितना है नंबर ऑफ मोल्स 0.1, और
नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.1 ही है, तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। सो सेम का सेम ही आ जाना है जब 0.1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो इन दिस वे these examples are solved for you. Again here few questions are there in which you have to calculate these same quantities. So with the help of these examples try to solve this example. If you have any doubts in any question you can ask me, okay. So in this way we have completed this complete chapter. I hope you understand this well. Just go through this chapter and ask me the doubts. This is it for today. Thank you and have a nice day.